السلام علیکم میرے نمونے سے پیارے سے کیوٹ سے ویورز، کیسے ہو یار آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بڑھیا ہی ہوں گے۔ گائز، آپ لوگوں نے تو دیکھا تھا کرن اور ادیتی لو اسٹوری کے پریویس پارٹ میں کہ جب کرن دیکھتی ہے کہ ادیتی کا موڈ خراب ہے تو اس کے چیکس پہ کس کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کے ادیتی مسکراتے ہوئے کرن کو بولتی لگتا ہے کسی کا کس کرنے کا من ہے۔ ارے کس کرنی ہے تو یہاں کرو نا، لپس پہ۔ ہاں، ایسے بول کے اپنے لپس کرن کے لپس کے قریب لے کے جاتی ہے، پر کرن تھوڑا شرماتے ہوئے نظریں چرا لیتی ہے۔ ادیتی ہوتی چلو کوئی نہ، نہیں کرتی آج آپ کو تنگ، لیکن بہت جلد کس تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ آج چھوڑ دیا کیا یاد رکھو گی؟ اور ایسے ہی مسکرانے لگتی ہے، مستی کرنے لگتی ہے۔ کرن بھی تھوڑی سی مستی کرتی ہے اور اب دھیرے دھیرے کرن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اور یہاں پہ ادیتی جو ہے وہ میڈیسنس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی کیا میڈیسن نہیں کھائی آپ نے؟ ارے آپ بھی نہ۔ اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے میڈیسن گلانے لگتی ہے۔ کرن جو ہے وہ ادیتی کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی تو ادیتی بولتی کیا ہوا؟ کرن کچھ نہیں بولتی ہے تو ادیتی اسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا لیتی ہے۔ تو کرن اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور ادیتی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کرن بہت ہی پیار سے ادیتی کو یوں بیڈ پہ لیٹاتی ہے اور اس کے سر کے نیچے پلو رکھتے اوپر بلینکٹ ڈالتی ہے، کہتی چلو اب تھوڑی دیر آرام کر لو، گڈ نائٹ۔ اور ایسے بول کے وہاں سے جانے لگتی ہے تو کرن اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اپنے پاس جو ہے بیڈ پہ یوں اشارہ کرتی ہے۔ ادیتی سمجھ جاتی ہے کہ مجھے بیڈ پہ آنے کا بول رہی ہے تو ادیتی یوں بیڈ پہ آ جاتی ہے اور کرن اس کے شولڈر کے اوپر یوں سر رکھ لیتی ہے تو ادیتی اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتی ہے اور کہتی میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کے۔ شانت ہو جاؤ، بس سو جاؤ، تھوڑا آرام کرو۔ اور پھر ادیتی جو ہے وہ کرن کو بہت ہی زیادہ پیار سے سلانے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ادیتی دیکھتی ہے کہ کرن گہری نیند میں سو گئی ہے تو ادیتی خود ہی کرن سے دور ہو جاتی ہے اور پھر ونڈو کے باہر جا کے پھر سے باہر کی طرف کچھ دیکھنے لگتی ہے اور کچھ سوچنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں ادیتی کیا ہی سوچ رہی تھی اور وہاں دوسری طرف ادیتی جو ہے وہ ایک دم سے کچھ سوچتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ کسی کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ باہر جاتی ہے لیکن وہ جب وہاں جاتی ہے تو اس نے جس کو دیکھا تھا وہ وہاں سے جا چکا تھا تو وہ واپس اوپر آ جاتی ہے اور پھر سے کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے موبائل کی طرف دیکھتی ہے اور پھر موبائل کو پھر سے پاکٹ میں ڈال لیتی ہے۔ یہاں ادیتی کہیں گمسم تھی، مانو جیسے اس کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہو، لیکن کیا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور یہاں پہ دوسری طرف ادیتی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کرن بہت ہی سکون سے سو رہی ہے اور پھر ادیتی واپس سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ بے چین تھی۔ اور یہاں ڈاکٹر جو ہے وہ کرن کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ کرن کو اچھے سے چیک اپ وغیرہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، کرن میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہے، کچھ ہی دن میں وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ تو سب یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، سب جو ہے ایک دوسرے کو کنگریٹس کر رہے تھے، لیکن ادیتی وہ تو کھوئی کھوئی بیٹھی تھی۔ تبھی ادیتی کی بہن کرن کی بہن جو ہے وہ ادیتی کو حق کر دیا۔ وہ کہتی دیدی آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی؟ انہوں نے بولا کرن دیدی ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیدی ہوتی ہاں یہ تو بہت اچھی نیوز ہے، واو، میں بہت خوش ہوں۔ اور وہ سب ایسے سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سب شور مچاتے ہیں، فل ہلا گلا۔ اور پھر کرن کی مما بولتی کیا کر رہے ہو، کیوں شور کر رہے ہو، بچی کو آرام کرنے دو نا۔ پر کرن بھی نہیں چاہتی تھی کوئی جائے، وہ بھی یہی مستی مذاق کرنا چاہتی تھی۔ سب ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، بہت مستی مذاق کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے دیکھتے بہت رات ہو جاتی ہے تو سب سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ادیتی جو ہے وہ جلدی سے جگتی ہے اور کہیں جا رہی ہوتی ہے، تبھی کرن کی مما اسے تھامتی ہیں اور کہتی ہے کہ ارے تھم جاؤ لڑکی، کہاں گھوڑے پہ سوار ہو، کہاں جانا ہے تم نے اتنی صبح صبح؟ تبھی ادیتی بولتی وہ میں واک کے لیے جا رہی ہوں۔ تو ایسے بول کے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ گھر سے تھوڑی دور آتی ہے اور پھر ایک ٹیکسی لے کے کہیں غائب ہو جاتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گئی۔ یہاں کرن جو سکون سے سو رہی تھی تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ادیتی نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور آج وہ بغیر کسی کے سپورٹ سے خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہلکا سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے واش روم میں جاتی ہے۔ وہاں بھی جب دیکھتی ہے ادیتی نہیں ہے تو وہ کچھ اسٹیئر سے نیچے آ رہی تھی، تبھی اس کی بہن دیکھتی ہے، اسے سہارا دینے کے لیے آنے لگتی ہے، پر اس کی ماں لیتی ہے اسے، کہتی ہے نہیں اسے خود آنے دو۔ اور پھر کرن بہت ہی ہمت کر کے ایسے اسٹیج کو تھام کے نیچے آ جاتی ہے۔ وہ جب نیچے آتی ہے تو کرن کی مما اسے سینے سے لگاتی ہو گئی تھی، میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی خود نیچے چل کے آئی ہے۔ اور تبھی کرن کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی کے سپورٹ کے آئی ہے، اور وہ بھی پھر اسمائل کرتی ہے اور پھر اپنی مما سے کہتی ہے کہ مما
अदिति अदिति कहाँ है? तो उसकी माँ बोलती है, अदिति बेटा वो तो वॉक पे गई है ना, तुम बैठो यहाँ पे, हाँ मैं तुम्हारे लिए फ्रेश फ्रेश जूस निकाल के लेके आती हूँ। ऐसे बोल के उसकी मम्मा जूस निकाल के ले आती है, पर किरण पी नहीं रही थी, तो उसकी माँ उसे अपने हाथों से बहुत प्यार से लाड करते हुए उसे पिलाती हैं और फिर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। और किरण को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर अभी भी उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहाँ किरण की छोटी बहन ये नोट करती है, कहती क्या हुआ अब अदिति दीदी के बगैर आपका मन नहीं लग रहा? हाँ डोंट वरी, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। वैसे भी जब से आप बीमार हो वो आपके साथ ही थी, आज ही घर से बाहर निकली हैं। और हाँ अदिति जो है वो थोड़ी देर में घर आ जाती है, जिसे देख के किरण खड़ी हो जाती है और अदिति की तरफ जाने लगती है, पर अदिति का ध्यान ही नहीं होता, वो देखती नहीं किरण की तरफ। वो अपने मोबाइल में देखते हुए भागते हुए ऊपर रूम की तरफ चली जाती है। तभी सा कहते हैं, अरे ये अदिति को क्या हो गया, उसने तो इधर देखा ही नहीं। तो किरण जो है वो ऊपर जाने लगती है, तो उसकी बहन बोलती बस बस दी, हाँ ज़्यादा 30 मार खाना बनो, मैं आपको ले जाती हूँ, आज के लिए बहुत वॉक हो गई आपकी। और फिर वो सहारा देते हुए अपनी दी को ऊपर लेके जाती हैं। वहाँ रूम में अदिति पहुँची थी, वो देखते हैं कि अरे ये कहाँ गई। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ती है, जहाँ किरण उसके सामने खड़ी थी। अदिति उसे थामते हुए कहती, अरे कहाँ चली गई थी आप, मैं आपको देख रही थी, किधर थे आप? तो कहती कहीं नहीं, मैं नीचे थी पर आप ऊपर आ गए, आपने मुझे देखा ही नहीं। जहाँ अदिति बोली सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था, मुझे लगा आप ऊपर ही होगी, तो मैं बस ऊपर ही आ गई। और फिर अदिति जो है वो किरण को यूँ सहारा देते हुए उसे बेड पे बिठाती है और कहती है कि कुछ खाया आपने? तो किरण बोलती मैंने जूस पिया था। तभी उसकी दीदी पास बैठ जाती है और वो भी अदिति से पूछ ही लेती है कि आप कहाँ गई थी। तो अदिति कुछ खास नहीं बताती, यही बोल देती है कि मैं वॉक पे गई थी। कि थी इतनी देर तक वॉक? तो बोलती हाँ बहुत टाइम वॉक पे गई, तो बस पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तभी किरण यूँ अदिति को देखती है और कहती है कि परेशान हो? जहाँ अदिति बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ठीक हो रही हो। और ऐसे ही बोल के अदिति जो है वो किरण को बोलती चलो मुँह खोलो मेडिसिन खा लो, और उसे मेडिसिन खिला देती है। अदिति कहती है कि चलो अब थोड़ा आराम करो, लेट जाओ, और उसे लेटा देती है और उसके हाथों को पाँव को यूँ दबाने लगती है। जिस जहाँ किरण बोलती नहीं मत मत करो। अदिति बोलती चल के नीचे गई हो ना, थक गई होगी। और फिर उसके पैर दबा रही थी, और यहाँ किरण की दी उसे बहुत प्यार से देख रही थी कि दीदी दी कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं दी का। और ऐसे सोच के वो नीचे चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ अदिति वो अभी भी खोई हुई थी, वो दबा तो रही थी पाँव पर वो कुछ सुन नहीं रही थी, जबकि किरण से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर अदिति का ध्यान नहीं था। और फिर किरण वो कहती है कि क्या हुआ प, प, तो ऐसे चुप हो जाती है। तभी अदिति होती नहीं हूँ परेशान, अम गुड हो के ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ। जिस पे किरण बोलती नहीं नो नहीं सोना। अदिति बोलती क्यों जिद कर रही हो, थोड़ा आराम करोगी तो आपको क्या जाएगा। पर अदिति तो जिद करने नहीं दे रही थी किरण को, पर किरण वो बहुत ज़िद्दी थी, वो दीदी की सुन ही नहीं रही थी। तभी अदिति बोलती अच्छा ठीक है तो बताओ क्या करना है। तो किरण सामने टीवी की तरफ देखने लगती है, तो अदिति टीवी चालू कर देती है और फिर एक कार्टून वाला चैनल लगा देती है, जिसे किरण जो है वो बहुत मज़े से देख रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी, स्माइल कर रही थी। और जब वो हंस रही थी तो दीदी उसे बहुत प्यार से देख रही थी और एकदम उसके करीब आके बैठ जाती है। किरण का ध्यान तो फुल टीवी पे था, पर अदिति का फुल और फुल किरण पे ध्यान था। एकदम उसके पास आके बैठ जाती है और उसके नेक पे यूँ हाथ रख के बहुत प्यार से स्माइल करते हुए उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तभी किरण की आँखें एकदम से फटी फटी रह जाती है, वो अदिति की तरफ देखती है। इससे पहले भी कि किरण भी अदिति को किस पर कर पाए या कुछ भी रिस्पॉन्ड कर पाए, अदिति एकदम से पीछे हो जाती है और फिर टॉयलेट में चली जाती है। वो वहाँ जाती है और बार बार अपने फेस को वॉश करने लगती है पानी से। यहाँ आज अदिति बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो किस चीज़ से परेशान थी, लेकिन क्या वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। और वहाँ दूसरी तरफ किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो अपने हाथ को यूँ अपने लिप्स के करीब लेके जाती है और जो भी हुआ वही सोच के मुस्कुराने लगती है, थोड़ा थोड़ा शर्माने लगती है। तभी थोड़ी देर में अदिति वॉशरूम से बाहर आती है और वो देखती है कि किरण ने कैसे अपने लिप्स को टच कर रखा है, वो किससे शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है।
तभी अदिति ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है टॉयलेट का, तो एकदम से किरण हाथ नीचे करती है और अदिति की तरफ देखने लगती है। अदिति फिर से किरण के पास आके बैठ जाती है और अब रिमोट उठाती है और चैनल बदलते हुए कहती क्या बच्चों का कार्टून देखती रहती हो, और फिर एक मूवी वाला चैनल लगा देती है और कहती कभी मूवी भी देख लिया करो, और खुद भी अदिति किरण के पास ही टिक लगा के बैठ जाती है। तभी मूवी में एक रोमांटिक मोमेंट आ जाता है जहाँ हस्बैंड वाइफ जो है वो तो वो एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। और जैसे ही वो दोनों क्लोज आ रहे थे वैसे ही किरण की सांसें बढ़ रही थी। और सच कहो तो अदिति की भी, अदिति किरण को देख रही थी, किरण अदिति को देख रही थी। ये दोनों टीवी से ज़्यादा अब एक दूसरे को देख रहे थे और टीवी में रोमांस चालू था और यहाँ ये दोनों आंखों ही आंखों में ही रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ पे अदिति की अदिति के मोबाइल में कॉल आने लगती है। अदिति एकदम से पीछे होती है और अपना कॉल रिसीव करके बाहर चली जाती है। बाहर जाके बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आती है तब फिर से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। तभी किरण पूछता है कि क्या 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 हुआ। जहाँ अदिति कुछ भी नहीं बोलती है, कहती नहीं सब सब ठीक है, मैं नीचे से होके आती हूँ। ऐसे बोल के अदिति नीचे चली जाती है। नीचे सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और किरण जो है वो ऊपर बैठी ही सोच रही थी कि अदिति को हुआ है क्या है। अदिति जो है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और फिर से बाहर जाने लगती है। तो किरण की मम्मा फिर से पूछते हैं बेटा क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या। अदिति होती नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आती हूँ, ऐसे बोल के वो फिर बाहर चली जाती है। और साफ दिखाई दे रहा था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये बात तो किरण की मामा भी समझ रही थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब अदिति जब वापस आई है तो वो अदिति से पूछ ही लेंगे कि उसे क्या परेशानी है, क्या चीज़ है, क्यों चिंतित है वो इतनी ज़्यादा। और बस अदिति के लौटने का वेट कर रहे थे। 2 घंटे बाद अदिति वापस आ जाती है और रूम की तरफ जाने लगती है। तभी किरण की मम्मा बोलती है उधर नहीं सर आप मेरे रूम में आओ, और ऐसे ही रूम में चली जाती है। तो अदिति भी किरण की मम्मा के रूम में चली जाती हुई थी। जी 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 माँ जी आपने बुलाया था मुझे। तो वो बोलती हाँ बेटा बैठ जाओ, और फिर अदिति उधर ही बैठ जाती है। यहाँ किरण की मम्मा बोलती है कि क्या बात है इतनी चिंतित लगती हो, क्या कोई परेशानी है क्या, क्या किसी ने कुछ बोला तुम्हें, अगर कुछ बात है तो बेटा मुझे बताओ। जिस पे अदिति बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है माँ जी, आपको ऐसे ही बस लग रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती तुमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बार बार बाहर जा रही हो, कुछ तो बात है मुझे नहीं बताओगी। तो अदिति जो है वो किरण की माँ के पास जो है वो ऐसे बैठ जाती है, उनकी गोदी में सर रख लेती है। और उसकी माँ जैसे ही अदिति के सर में बालों में हाथ फेरने लगती तो वो एकदम से उठ के बैठ जाती कि थी मुझे मुझे कुछ काम है, और ऐसे ही बोल के उठ के चली जाती है। और अदिति जी जो है वो किरण के रूम में चली जाती है। फिर से किरण जो है वो बैठी थी जैसे वो अदिति का ही वेट कर रही थी। अदिति जैसे उसके पास जाके बैठती है तो किरण ने उसके शोल्डर पे सर रख लेती है और अदिति उसके फेस पे यूँ टैप टैप कर रही, जिससे किरण को बहुत अच्छा सा लगता है और एक सुकून सा मिलता है। लेकिन थोड़ी देर में अदिति जो है वो हाथ यूँ हटा लेती है तो किरण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह फिर से अदिति का हाथ वो पकड़ के अपने फेस पे यूँ रखती है और उसे यूँ टैप टैप कराने लगती है। तो अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा लगता है आपको जब मैं ऐसे हाथ रखती हूँ। तो किरण बोलती है हाँ बहुत अच्छा, एक सुकून सा मिलता है। और ये सुन के अदिति भी थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वो किरण के फोrehead पे किस करती है, जिससे किरण अदिति के शोल्डर से हट जाती है और उसे यूँ देखने लगती है और उसके करीब आने लगती है। और यहाँ अदिति भी खुद को नहीं रोक पाती और वो ऐसे नेक में हाथ डाल देती है और अदिति के फेस को बहुत प्यार से देखते हुए उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है, जैसे लिप्स पे किस करने वाली थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है तो ये दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे फिर से डॉक्टर आया उसे चेक करने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर और किरण की मम्मा दोनों साथ में रूम में आए थे जो अदिति को इशारा करते हैं कि इसे चेक करना है। अदिति बेड से हट जाती है और फिर डॉक्टर किरण का अच्छे से चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि वाकई किरण तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकली, बहुत जल्दी रिकवर किया है तुमने। और अब किरण पहले से ठीक होती जा रही थी और ऐसे ही 1-2 दिन में किरण बिल्कुल नॉर्मल हो जाती जैसे वो पहले थी, चलना फिरना उठना। अब उसे किसी भी चीज़ में किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, वो ये सब खुद अच्छे से कर सकती थी। लेकिन फिर भी जब अदिति उसके पास होती तो उसे किरण ऐसे दिखाती जैसे उसे आज भी उसकी ज़रूरत है। जैसे अपने हाथ से पानी ना पीना, अपने हाथ से खाना ना खाना, बिना सहारे के चलना नहीं, अदिति का सहारा लेना, ये सब चीज़ें किरण कर कर रही थी। और ये सब अदिति भी अच्छे से जानती थी कि किरण ये जानबूझ के कर रही है। और अदिति मुस्कुराते हुए उसके साथ
जैसा वो चाहती वैसे ही करती, उसे सहारा देती, अपने हाथों से खाना खिलाती। दिन बीतते गए और ये दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती रही। कभी अदिति किरण के करीब आने लगती तो कभी किरण अदिति के करीब आने लगती। इन दोनों की नज़दीकियाँ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ किरण के सीनियर वो बार बार कॉल कर रहे थे और अब उसे कहते हैं कि अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम अपनी पोस्ट संभालो। पर जहाँ किरण जो है वो अब जाना ही नहीं चाहती थी, उसे अब उस पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे अब चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ अदिति का साथ, उसका प्यार और कुछ नहीं। और वो जानती थी कि शायद अदिति को बुरा लगेगा अगर उसने फिर से पोस्ट ज्वाइन कर ली तो, पर ऐसा नहीं था। अदिति खुद किरण को बोलती है कि आप जा सकती हो, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। किरण बोलती मुझे लगा कि आपको अदिति होती नहीं, मुझे आपकी कोई भी चीज़ पसंद ना हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे आपकी हर एक चीज़ पसंद है, हर एक चीज़। और वैसे भी मैं तो आपको आईपीएस वाले यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ। जहाँ अदिति ये बोल के थोड़ा सा स्माइल करती है और अदिति भी स्माइल करती है। अदिति खुद कबर्ड से किरण का यूनिफॉर्म निकालती है, उसे अपने हाथ से टच करते हुए थी। अरे देखो यहाँ से इसकी प्रेस ख़राब हो गई, रुको मैं प्रेस करके आती हूँ। और फिर अपने हाथ से वो किरण का ड्रेस भी प्रेस करती है। उसके पास आके ड्रेस रखते हुए कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, आप चेंज कर लेना। जहाँ किरण उसका हाथ थामते हुए कहती है कि निकाल दिया ड्रेस, प्रेस कर दिया तो अब पहना भी खुद दो, और वैसे भी मैं अभी बीमार हूँ ना। अदिति मुस्कुराते कहती मैं जानती हूँ आप कब के ठीक हो गई, बस ऐसे मुझसे खिदमत करवा रही थी ना। किरणमती जहाँ इतनी कर ली थोड़ी सी और कर लो ना प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि अब मुझे आप रेडी करो। अदिति मुस्कुराते कहती क्यों, छोटी बच्ची हो क्या? किरणमती अगर आप साथ हो तो मुझे बच्ची बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण के करीब आती है और कहती है ठीक है बैठो। और फिर किरण बैठ जाती है शर्माते हुए, धीरे 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 उसका ड्रेस जो है वो रिमूव करने लगती है। और अब किरण शर्माना स्टार्ट कर रही थी और अदिति उसकी तो सांस ही तेज़ हो रही थी। उफ बेचारी हालत ख़राब हो गई थी उसकी तो। खैर वो जैसे तैसे दीदी जो है वो किरण का ड्रेस रिमूव करती है और थोड़ा सा पीछे होकर उसे देख ही रही थी कि तभी किरण अपने आप को अपने हाथों से ही वो कवर करने लगती है। तो दीदी मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे पास सेल्फ कंट्रोल बहुत है, वो कि तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ किरण मुस्कुराने लगती है तो दीदी उसे धीरे धीरे करीब आते हुए उसकी ड्रेस पहनाती है, उसका यानी यूनिफॉर्म पहनाती है, उसके बटन वगैरह लगाती है। और फिर उसके सिक्स पे किस कर कहती लो अब रेडी हो गई। और फिर किरण खड़े होने लगती है और अदिति से कहती एक सेकंड बाल तो बनाए नहीं, मैं बिना कितने ब्लग करूँ। और फिर अदिति जो है वो किरण के बाल बनाने लगती है। और किरण जैसे ही खड़ी होती है तो अदिति बोलती शूज़ शूज़ भी तो रहता है ना, रुको अभी लाती हूँ। और फिर अदिति शूज़ लाती है, उसे अपने हाथों से शौक से उसका शूज़ भी पहनाती है। और यहाँ आप किरण पूरी तरह से रेडी थी और आज उसे फुल अदिति ने ही तैयार किया था। तो किरण कहती है वाह, मैं आज से पहले तो इस यूनिफॉर्म में इतनी सुंदर नहीं लगी। किरण बोलती है लगता है कि आपके हाथों का जादू है, काश आप रोज़ मुझे ऐसे रेडी करें तो क्या ही बात है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती बस बस अब ज़्यादा फ्री मत हो जाओ मेरे साथ। यहाँ तो किरण मुस्कुराते कहती अगर कह देती कि हाँ मैं रोज़ रेडी कर दूँगी तो आपका कुछ चला जाता। अदिति बोलती हाँ बहुत कुछ। तो किरण कहती अच्छा सुनो। अदिति बोलती हाँ। किरणमती यहाँ देखो। अदिति कहाँ? किरणमती अरे यहाँ इधर ऊपर। तो अदिति जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखने लगती है तो किरण एकदम से उसके लिप्स पे किस करती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। अदिति बोलती है अरे ठहरो, पर किरण वहाँ से चली जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए खुद को मिरर में देखती है और फिर बाहर आ जाती है, जहाँ किरण अपनी माँ का आशीर्वाद ले रही थी। और आज उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि किरण को इतने टाइम बाद उसकी यूनिफॉर्म में देखना और फिर उस ऊपर से इतनी ज़्यादा खुश देखना, वो ये सब देखने के लिए मानो तरस ही गई थी। और किरण जो है वो अपनी माँ को ही सल्यूट भी करती है, जहाँ उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो उसकी नज़र उतारने लगती हैं। और तभी अदिति आ जाती है और माँ कहती है अदिति चलो इसके पास खड़ी हो जाओ, और वो फिर किरण के पास खड़ी हो जाती है और माँ जो होती है वो इन दोनों की नज़र उतारती है। और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर अदिति भी माँ का आशीर्वाद लेती हैं। और किरण जो है वो कहती है कि चलें। अदिति बोलती चलें क्या, मतलब मैं थोड़ी जाऊँगी, आप जाओ। किरणमती साथ तो चल सकती हो ना प्लीज़। अदिति होती पर मेरा वहाँ क्या काम। किरणमती प्लीज़ ना। अदिति होती अच्छा ठीक है। किरणमती सुनो, आपको याद है जब मैं अनकॉन्शियस पड़ी थी तो आपने मुझे क्या बोला था? अदिति होती नहीं, तब की हुई मुझे कोई बात भी याद नहीं है। अदिति होती
चले अब किरणमती, पर मुझे आपकी कही हुई एक एक बात याद है। आई नो, आपने बोला था कि बाइक चलाएंगे, पर बाइक आप चलाओगी, तो फिर चलो बाइक से चलते हैं। और फिर किरण अपने बाइक की कीज ढूंढने लगते, तभी उसकी माँ से उसके बाइक की कीज देती है और फिर किरण वो अदिति को देती है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ अदिति बाइक को टच करती है और फिर वो बाइक पे बैठ जाती है। और थोड़ी देर में किरण भी उसके पीछे बैठ जाती है, उसे कस के पकड़ लेती है। अदिति बोती, अगर ऐसे पकड़ोगी तो देखो कभी पहुंच ही नहीं पाओगी। अपने पुलिस स्टेशन तो रहने दो, ऐसे मत पकड़ो। किरण बोती, अगर ऐसे नहीं पकड़ोगी तो गिर जाऊंगी, फिर से मुझे बीमार नहीं पड़ना। तो यहाँ ये मुस्कुराने लगते हैं। और फिर किरण जो है वो कहती है चलो अब मुझे लेट हो रहा है, और अदिति जब घूम घूम करके बाइक चलाती है। अदिति काफ़ी टाइम थोड़ा तेज़ भी चलाती है, पर वो बहुत ज़्यादा संभल के चलाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किरण को फिर से थोड़ी सी भी चोट लगे। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ किरण और अदिति साथ साथ चल रहे थे। अब किरण को जो भी देखता सब सलूट करता, और अदिति बोती, वाह देखो सब आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। किरण बोती, अदिति बोती, अगर ऐसी रिस्पेक्ट मिलती तो शायद मैं भी ऐसे मिशन पे जा सकती थी। और फिर यहाँ किरण थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और उधर ही रुक जाती है। अदिति बोती, कम ऑन, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। किरण बोती, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहती थी, इनफैक्ट मैंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया। अदिति बोती, या आई नो, अब चलो। और फिर ये लोग ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ किरण जो है वो अपनी चेयर पर अदिति को बिठाती है और फिर वो उस चेयर को घुमाने लगती है। अदिति बोती, अरे बस बस बस, क्या चक्कर आ जाएंगे मुझे। तो किरण एकदम से चेयर रोकती है और अदिति के करीब आने लगती है। अदिति बोती, क्या कर रही हो, हाँ ये ऑफिस है आपका, छोड़ो पीछे हटो। किरण बोती, और आप भी तो मेरी ही हो ना। और ऐसे बोल के उसकी लिप्स पे किस कर दिया था। अदिति वो उसे किस करती है, फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। यहाँ अदिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो किरण को एकदम से यूँ दिमाग से लगाती है और उसके लिप्स पे किस करने लगते हैं। कभी अदिति दिमाग से लगी हुई थी तो कभी किरण, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। और तभी जो दरवाज़ा नोक नोक होता है, दोनों पीछे होते हैं और खुद का हुलिया सेट करने लगते हैं। तभी जो वो एक कांस्टेबल अंदर आता है और वो कहता है कि मैम वो आपसे मिलने कोई आया है। किरणवती, मुझसे मिलने, ठीक है अंदर भेजो। तभी अदिति बोती है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। किरणवती, कहाँ। अदिति बोती, अब आप करो अपना काम, मैं बस छोड़ने आई थी, अब मैं वापस जा रही हूँ। किरणवती, अच्छा ठीक है, संभल के जाना, ओके। अदिति होती, और आप भी अपना ख्याल रखना। अदिति जो है वहाँ से चली जाती है। तभी किरण के पास ऑफिस में दो ओल्ड जो है वो कपल आते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं और बताने लगते हैं वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उनका इकलौती जीने का सहारा, मतलब उनका इकलौती ज़मीन जिन्हें वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए वो जीते हैं, मतलब उनके पास उस घर के अलावा, उस ज़मीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ गुंडों ने वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है और उस घर पे उन्होंने अपना कब्ज़ा कर रखा है और कहते हैं ये उनकी है। और मतलब बहुत कुछ ऐसा, बहुत दादागिरी टाइप कर रहे हैं। उनकी इकलौती पोती उन्हें भी छेड़ रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे नाम नहीं किया तो अपना इकलौते जीने के सहारे यानी अपनी पोती को खो दोगे। और बहुत ज़्यादा थ्रेट दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और किरण के सामने रोने लगते हैं। किरण यहाँ फुल दबंग अंदाज में अपनी गन निकालती है और 3-4 इंस्पेक्टर्स लेके गाड़ी में बैठ के तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ अभी भी गुंडों ने अपना डेरा दबाया हुआ था। वहाँ किरण फुल दबंग स्टाइल में जाती है और सबको वहाँ से पीट पीट के भगा देती है और वॉर्न करती है कि अगर फिर से इन्हें परेशान किया तो तुम बहुत लंबा अंदर जाओगे। वहाँ सारे भाग जाते हैं लेकिन एक पकड़ा जाता है, जिसे किरण जेल में डाल देती है और बाकी उसके पार्टनर्स के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन थे और क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो। खैर थोड़ी देर में वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जहाँ वो ओल्ड कपल बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन्हें बहुत आशीर्वाद और दुआएं दे के चला जाता है। अब यहाँ किरण जो है वो बैठी थी कि तभी एक दो केस और उसके पास आ जाते हैं। वो इतने टाइम से काम नहीं कर रही थी तो उसकी आदत छूट रही थी और अब वैसे भी उसे बस अदिति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो अदिति के बारे में सोच रही थी और काम करने का मन ही नहीं था। और फिर उसे अदिति की बात याद आती है कि देखो सब तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर किरण वो चाहती थी कि सब ऐसे उसकी रिस्पेक्ट करें ताकि अदिति को अच्छा लगता रहे, इसलिए वो काम में मन लगा लेती है। वहाँ अदिति जो है वो घर नहीं जाती, वो कहीं और ही चली जाती है। वो कहाँ जाती है ये अभी हमें भी नहीं पता। किरण तो बहुत खुश थी कि उसे उसका प्यार मिल गया, लेकिन वो जानती नहीं थी कि अदिति कुछ गड़बड़ कर रही है। वो क्या गड़बड़ कर रही है ये भी हमें भी नहीं पता। अब वो क्या कर रही है, कहीं वो
کرن سے بدلہ لینے کے لیے کچھ پلان تو نہیں کر رہی، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی کیونکہ وہ تو بدل چکی ہے، اس نے تو معافی بھی ایکسیپٹ کر لی۔ خیر جو بھی ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان سے پہلے ایک پیار سے چھوٹی سی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو کر دو جلدی سے سبسکرائب۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔